एक प्रश्न હું પૂછું કે झूठ बोलना कौन से ध्यान में है? खोटू बोलीए, कोई खोटू बोले એ કયા ધ્યાનમાં આવે છે? સાધનાજી મહારાજ, તમે કીધું ધ્યાન એટલે શું અને કેવા, એ હું ક્વેશ્ચન જરા ક્લેરિફાઈ કરો તો. હા હા, ધ્યાન નિશ્ચિત રૂપથી આપણું જે સૂત્ર છે કે ઉત્તમ સંહનનસ્ય એકાગ્ર ચિંતા નિરોધો ધ્યાનમ, આ ધ્યાનની વ્યાખ્યા છે કે એકાગ્ર ચિંતન જેમાં થાય એ વિષય કયો પણ હોઈ શકે, જે પણ વિષય હોય એની અંદરમાં આપણું એકાગ્ર ચિંતન જે હોય એને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. પછી શુભ ધ્યાન પણ છે અને અશુભ ધ્યાન પણ છે. તો અશુભ ધ્યાન આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન છે, અને શુભ ધ્યાન ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન છે. હવે આપણે હિંસા કરીએ કે ખોટું બોલીએ કે ચોરી કરીએ કે વિષયનું સંરક્ષણ કરવા માટે આપણે કંઈક કરીએ તો એ બધું કયા ધ્યાનમાં આવે? રૌદ્ર ધ્યાનમાં. રૌદ્ર ધ્યાનમાં. હા, બરાબર. રૌદ્ર ધ્યાન. એટલે આપણા વિષય એટલે ઇન્દ્રિયોના જે વિષય છે એ વિષયના સંરક્ષણ માટે આપણે એક રુદ્રતા અંદરમાં આવી જાય છે, ગુસ્સો અંદરમાં આવી જાય છે. એ ભલે ખોટું બોલીએ કે ચોરી કરવામાં પણ એવી જ રીતે રુદ્રતા હોય છે. હિંસામાં તો છે જ રુદ્રતા. આ 4 પ્રકારના રૌદ્ર ધ્યાન છે. ચારેય પ્રકારની અંદરમાં આપણે જોઈએ છે કે હિંસાનુબંધી છે, અનૃતાનુબંધી છે, સ્થેયાનુબંધી છે અને વિષય સંરક્ષણાનુબંધી છે રૌદ્ર ધ્યાન. એટલે બધા જ આ કષાય સહિતના આ રૌદ્ર ધ્યાનના પ્રકાર છે. પછી આમ રૌદ્ર ધ્યાન છે, પણ તમે આપણે આર્ત ધ્યાન હોય ત્યારે એ બી આપણે જૂઠું નહીં બોલીએ, કોઈને આપણે ગમતું ના હોય ને એને કંઈક ખોટું બોલીને જ કાઢવું હોય તો એ બી નહીં આવે એમાં? આર્તમાં આવી જાય? હા, આર્તમાં એમ આવે કે આપણે જે વસ્તુ આપણને બહુ પ્રિય છે એ વસ્તુ જો ખોવાઈ જાય, વહી જાય, કોઈ લઈ લે, કોઈ છીનવી લે તો એમાં આપણું આર્ત ધ્યાન થાય. અથવા આપણને જે નથી જોતી એવી વસ્તુ, એવી વ્યક્તિ, એવી જગ્યા, એવું બધું આપણને મળે જે નથી જોતું, નથી ગમતું, આપણા પ્રતિકૂળ છે એવી વસ્તુ આપણા પાસે છે અને એ ક્યારે જાય, ક્યારે નીકળે, ક્યારે આપણા પાસેથી દૂર થઈ જાય, એના માટેનું જે ધ્યાન છે એ આર્ત ધ્યાન કહેવાય. વેદના આવે, માથું દુખે કે પેટમાં દુખે કે કાંઈ પણ તકલીફ થાય, એ ક્યારે દૂર થાય, એ વેદનામાં આપણું ચિત્ત લાગેલું રહે, એમાં એકાગ્રતા રહે. કાંઈ પણ બધું થતું હોય પણ આપણી જે વેદના છે એની અંદરમાં આપણું ધ્યાન એકાગ્ર થઈ જાય છે, એ આર્ત ધ્યાન કહેવાય છે. અથવા કોઈ વસ્તુ આપણને જોતી હોય કે આ વસ્તુ આપણને ક્યારે મળશે, એના માટે આપણું જે ધ્યાન હોય છે એ આર્ત ધ્યાન છે. અને આર્ત ધ્યાનમાં આર્તતા છે, વ્યગ્રતા છે. એક વસ્તુ નથી જોતી અથવા જોઈએ એના માટેની બસ તાલાવેલી હોય છે. અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં રુદ્રતા હોય, બીજાને મારવાની, બીજાને હટાવવાની, બીજાને તકલીફ આપવાની, એવી જે ભાવનાઓ હોય એ રૌદ્ર ધ્યાનની અંદરમાં છે. સાધનાજી મહારાજ, કઈ આપણામાં ગમે તે આપણે એક્સપિરિયન્સ કરીએ તો આપણે બીજાને બ્લેમ કરીએ તો એ રૌદ્ર ધ્યાનમાં જ આવે ને? આપણે આજે તમે હતા એ પેલા અમે ડિસ્કસ કરતા હતા કે કઈ આપણને થાય તો આપણે એમ વિચાર કરવાનો કે ઈ પૂર્વ ભવનું આપણું એવું હશે, રાધર દેન કે મને આણે કેમ આમ કર્યું, તો એ રૌદ્ર ધ્યાનમાં આવી જાય ને, કે આપણને એમ થાય કે મને આણે આમ કર્યું, એ રૌદ્ર ધ્યાનમાં આવે. હા,
અને એને આમ કર્યું, એના ઉપર ગુસ્સો આવે, હા એને એને કઈ તકલીફ થઈ જાય તો આપણને મજા આવે, પણ ઈ ના થાય, ખાલી ખોટું લાગે તો એને રૌદ્ર ધ્યાન કહેવાય? એને શું કહેવાય? ગુસ્સો ખોટું ના લાગે. આવે અને ખોટું એ અર્થ ધ્યાન, એ અર્થ ધ્યાન. કારણ કે આપણું યશ આપણને ગમતું હોય, આપણું સન્માન આપણને ગમતું હોય અને એમાં ધક્કો લાગે છે, એટલે હા, એ અર્થ ધ્યાનમાં આવી ગયું. ઓકે, થેન્ક યુ સર. હવે આર્ત ધ્યાન કયા ગુણસ્થાન સુધી છે અને રૌદ્ર ધ્યાન કયા ગુણસ્થાન સુધી છે? કુમકુમબેન? શ્યોર નથી, પણ 9માં સુધી છે, 8 ને 9 સુધી. અચ્છા, ભરતભાઈ તમે? આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર સદાજી ધ્યાન મહારાજ. શ્યોર હા, નથી. આર્ત ધ્યાન 6ઠા ગુણસ્થાન સુધી હોય. હા, અને રૌદ્ર ધ્યાન? રૌદ્ર ધ્યાન મારા ખ્યાલથી 5મા ગુણસ્થાનથી. બરોબર, ઓ બરોબર, સોરી બરોબર. 5માં, સોરી, હું એટલે આગળ. જ એટલે જ તમને ખબર હશે કે રાગ જે છે એ આપણા શરીર પ્રત્યે, આપણા જે ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે, એ બધું જે આપણું જે રાગ છે એ બહુ મુશ્કેલથી છૂટે. એ રૌદ્ર ધ્યાન જે છે એ 5મા સુધી જ છે અને અર્થ ધ્યાન આગળ જાય છે, 6ઠા સુધી જાય. તો સાધનાજી મહારાજ, મથેન વંદામી, આપણે સૂક્ષ્મ લોભ હોય તો ઈ રૌદ્ર, ઈ અર્થ ધ્યાન ના હોય? શું? સૂક્ષ્મ લોભ આપણને જે છે, હા, 12મા ગુણસ્થાન છે એ તો છેલ્લે સુધી રહે છે. ક્રોધ હટી જાય, હા, માન હટી જાય, માયા હટી જાય, પણ લોભ રહે છે. એટલે જ એ જે સૂક્ષ્મ લોભ છે એ અંત સુધી. એટલે જ વીતરાગ શબ્દ છે, વીત દ્વેષ શબ્દ નથી, તો ઈ વીતરાગ. અર્થ ધ્યાન ના કહેવાય? ઈ આપણને ના, લોભ. એ અર્થ ધ્યાન ન કહેવાય. ઓકે. એ અર્થ ધ્યાન એટલે અર્થી એટલે દુઃખ. અર્થી આ શબ્દ છે સંસ્કૃતનો, એનો અર્થ છે દુઃખ. આપણને દુઃખ થાય કે મને વેદના છે, મને દુઃખ થાય છે, મને વેદના છે કે આ વસ્તુ મને નથી જોતી અને કેમ મારી સામે છે, એનું મને દુઃખ થાય છે. અરે આ વસ્તુ મારી છે અને એ કેમ ખોવાઈ ગઈ, એ કેમ વહી ગઈ, કેમ કોઈ વ્યક્તિ આપણું મરી જાય તો એનો અર્થ ધ્યાન થાય આપણને કે કેમ એવું થયું છે તો ને. સાધનાજી મારે સાહેબ 8માં 9માં સુધી કોઈ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ન હોય? ના, એકદમ નહીં. ખતમ થઈ જાય? 7મા ગુણસ્થાન થી ધર્મ ધ્યાન શરૂ થઈ જાય છે. અચ્છા. તો આ આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન 6ઠા ગુણસ્થાન સુધી છે. સાધનાજી મહારાજ, હા, આપણે બોલો. અપ્રમાદ આવે તો આર્થ ધ્યાન ના હોય ને રૌદ્ર ધ્યાન તો ના જ હોય, અને પણ આપણામાં થોડુંક સ્વંજલન, ક્રોધ, માન, માયા છે, તો અને લોભ તો છે જ, પણ ઈ જ્યારે ક્રોધ, માન, માયા છે, સ્વંજલન, પણ એમાં આર્થ ધ્યાન ના હોય. ના, જો 7મું ગુણસ્થાન ઉપર આપણે આવી જઈએ, અપ્રમત્ત અવસ્થા જ્યારે આવી જાય ત્યારે ધર્મ ધ્યાન જ હોય છે, ત્યારે આર્ત અને રૌદ્ર નથી. હવે એક પ્રશ્ન છે કે વિતર્ક કોને કહેવાય? વિતર્ક એટલે શું? વિચાર. શું તમે, રીટાબેન, તમે શું કહો છો? વિતર્ક એટલે? સાધનાજી મહારાજ, મને નથી ખબર વિતર્ક. કોઈ કહેશે?
મીનાબેન કંઈક બોલ્યા હતા ના સાથે હું કીધું વિચાર એટલે વિતર્ક વિચાર કઈ હા, એક સૂત્ર છે આપણું, આપણે સૂત્ર બોલીએ છીએ ને, વિતર્ક શ્રુતમ. સૂત્ર છે ને? જ્ઞાન ઉપર વિચાર કરવો એ વિતર્ક. હા, વિતર્ક શ્રુતમ. શ્રુત જ્ઞાન જે છે એ વિતર્ક. એટલે જ તમે જે કહો છો લગભગ એ છે કે શ્રુત જ્ઞાન એટલે જ વિચાર છે ને. શ્રુત જ્ઞાન એટલે વિચાર, ચિંતન, મનન, એ જ તો શ્રુત જ્ઞાનની અંદરમાં છે. પ્રભુની વાણી છે અને એ શ્રુત છે. એ શ્રુતમ. વિતર્ક શ્રુતમ એક સૂત્ર જ આપેલું છે. અને વ્યંજનનો શું અર્થ છે? વ્યંજન શબ્દ व्यंजन मति ज्ञान का विषय है ना? हाँ व्यंजन मति ज्ञान का विषय है ये। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है। और व्यंजन का अर्थ है, सूत्र में दिया हुआ है कि वो जो, हाँ, जो हम शुक्ल ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद है, शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। क्या क्या है, कौन कौन से है? एकत्व, वितर्क, पृथक वितर्क विचार, हाँ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि અને ક્રિયા નિવૃત્તિને एकत्व वितर्क अविचार. हाँ, पृथकत्व પછી एकत्व, आ बे इन दोनों को वितर्क लगेगा, है ना? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। अब ये जो पृथकत्व वितर्क है और एकत्व वितर्क है, ये दोनों के दोनों श्रुत ज्ञान से संबंधित है। ये पूर्वविद है ना, शुक्ले चाद्य पूर्वविद, तो पूर्व का मतलब श्रुत ज्ञान। तो ये पृथकत्व वितर्क में क्या होता है कि आप लोगों को ये ध्यान में है कि मति ज्ञान, जैसे कि अभी कमला बहन ने कहा, तो वो जो मति ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान का विषय है। अब ये जो पृथकत्व वितर्क है वो क्या करता है, वो अर्थ को ग्रहण करता है ना। पहले अध्याय में हमको पता है कि अर्थस्य, मति ज्ञान का जो विषय है पहले अध्याय में है, अर्थस्य सूत्र है, अर्थ को ग्रहण करता है। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ है द्रव्य और द्रव्य की पर्याय, द्रव्य और द्रव्य की पर्याय। 6 द्रव्य से अलग तो हम कुछ देख सुन नहीं सकते, है ना। इन्हीं 6 द्रव्यों में से ही कुछ द्रव्यों की हम पर्यायों को जानते, सुनते, देखते हैं। तो ये जो वितर्क है वो क्या है? पृथकत्व मतलब अलग अलग। पृथक का मतलब होता है अलग अलग। तो कभी इस द्रव्य पर विचार, कभी उस द्रव्य पर विचार, मतलब जीव द्रव्य पर विचार, जीव से अजीव द्रव्य पर विचार, कभी जीव द्रव्य की पर्याय पर विचार, कभी अजीव द्रव्य की पर्याय पर विचार, कभी पर्याय से द्रव्य पर, कभी द्रव्य से पर्याय पर जो चिंतन होता है वो क्या है? पृथकत्व वितर्क है। और एकत्व वितर्क में भी है तो श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के बिना तो एकत्व हमको कैसे पता लगेगा? न एकत्व का पता लगेगा, न पृथकत्व का पता लगेगा। तो एकत्व मतलब एक ही विषय पर स्थिर रह करके जो विचार होता है। वितर्क का अर्थ जैसे बीनाबेन ने कहा कि विचार, तो ये एक ही विषय पर जो चिंतन होता है वो एकत्व विचार है। पृथकत्व विचार और एकत्व विचार में इतना ही फर्क है कि वो एक जगह स्थिर रहता है एकत्व में, और पृथकत्व में थोड़ा वो पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर है। तो मतलब शुभ विचार है, द्रव्य का विचार है, जीव का विचार है, अजीव का विचार है, उनके पर्यायों का विचार है, और इसमें योग का हलन चलन है ही, निश्चित ही है। तो ये पृथकत्व
वितर्क और एकत्व वितर्क हुआ। अब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति ने ये सूक्ष्म ध्यान है, ये 12वें 13वें गुणस्थान में ये होता है। और निश्चित रूप से हमको ये पता है कि आ मुहूर्ता दिया है, कोई भी ध्यान हो, चाहे आर्त हो, चाहे रौद्र हो, चाहे धर्म हो, चाहे शुक्ल, कोई भी ध्यान हो, वो कितना रहता है? आ मुहूर्तात, मुहूर्त भर रहता है। और उसके बाद फिर एक बार गुरुदेव ने कहा था कि हम 24 तीर्थंकरों की और जितने भी 72 तीर्थंकरों की मूर्तियां देखते हैं तो वो ध्यान में देखते हैं, वास्तव में वो ध्यानातीत है, ध्यानातीत है। लेकिन हम लोगों को एक प्रेरणा देने के लिए उनकी ध्यान में मूर्तियां है, ध्यान में मूर्ति है, वो तो ध्यानातीत हो गए। वो मतलब हमारे जितने भी ये तत्व है वो मोक्ष में पधार गए हैं, ये सारे तत्व बाकी के हट गए हैं। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, अश्रव तत्व, संवर तत्व। जीव तत्व को हम इस अर्थ में लेंगे कि वो तो जीव तो है ही, है ना, लेकिन बाकी के ये जो कर्म से संबंधित हमारा जो है, आश्रव है कि संवर है कि ये सारा के सारा हट गया, ये सारी झंझटें हट गई है। तो वहां पर शब्द का भी कोई मतलब नहीं है, वहां पर विचार का भी, चिंतन का भी कोई मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि वहां पर मन की भी क्रिया नहीं है, वाणी की भी क्रिया नहीं है, और शरीर की भी क्रिया से परे है। वो क्रिया जो हमें दिखाई देती है उन क्रियाओं से भी वो क्या है? परे है। अब मथन वंदना बाबू जी। हाँ बोलो। अब यहाँ जो व्यंजन का अर्थ निकलेगा वो किस अपेक्षा से फिर? व्यंजन का मतलब अर्थ यहाँ जब- है, व्यंजन का अर्थ है श्रुत ज्ञान पूर्वक जो वाक्य है। व्यंजन आपको पता होगा कि हम स्वर और व्यंजन कहते हैं ना, अरे वो नहीं। हाँ, तो अ ब क ख ग घ ये सारे जितने भी ये व्यंजन है। अक्षर है ये सारे हाँ। व्यंजन है। तो ये ठीक। व्यंजन वाक्य जो है, व्यंजन वाक्य मतलब हाँ। श्रुत ज्ञान के जो वाक्य है, प्रभु के जो वाक्य है, कहे हुए प्रभु का जो ज्ञानमय जो शब्द है, तो उन शब्दों पर जो विचार होता है वो व्यंजन है, वो व्यंजन है। नहीं, वितराग वाणी को ही उन्होंने, वितराग वाणी को ही व्यंजन कहा है उन्होंने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, हाँ। ओके। अब अर्थ का अर्थ तो शुद्ध किया आपने, मतलब कहा आपने, और हाँ, व्यंजन का वितराग वाणी का मतलब वो दोनों हाँ, समानार्थी हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यानी सारा जा करके अंत में एक ही हो जाता है सारा। मतलब पहले शुरुआत में हम कहेंगे कि व्यंजन अलग है, अर्थ अलग है, पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है, लेकिन वो सारा का सारा अंत में जाकर के एक हो जाता है। अब સાધનાજી अब માતા हाँ बोलो। આમાં આ છે વિચારોર્થ વ્યંજન યોગ संक्रांति, संक्रांति, तो ये- संक्रांति का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। संक्रांति का अर्थ होता है क्रांत होना, यानी जैसे कि सूर्य एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाता है तो वो संक्रांति होती है ना। तो इसी तरह से द्रव्य से पर्याय पर आया है हमारा विचार, तो वो क्या हुआ? संक्रांति हुई। और पर्याय से द्रव्य पर जाता है, द्रव्य से अर्थ पर जाता है, तो इस तरह से ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको कहते हैं संक्रांति। मथन बाबू जी, हाँ, मतलब बोलो। फिर ये जो तीनों सूत्र है, 43, 44 और 46वां सूत्र, ये सब मतलब एकत्व वितर्क और पृथकत्व वितर्क के लिए आए हुए, ऐसा ही ना फिर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके, ओके। तो ये मतलब विचार, फिर अर्थ, फिर व्यंजन
और इनके साथ योग। में योग, है ना। हम्म। कभी अर्थ का विचार होता है, कभी प्रभु की वाणी में से कोई एक शब्द ले लिया, कोई वाक्य ले लिया, उसके ऊपर विचार हो गया, है ना। और फिर वो कभी अर्थ से शब्द पर, शब्द से अर्थ पर, व्यंजन से और भी अंदर में गहराई में, इस तरह से ये, क्योंकि मन तो हमेशा रहता ही क्या? है। हाँ, उसके साथ योग भी जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, तो योग तो है ही, योग तो है ही। तो मन से ही अपन विचार करेंगे ना, मन से ही हाँ, मन से शब्द- विचार करेंगे। और क्योंकि वाणी हम जोर से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर में तो वाणी चलती है ना, अंदर में तो शब्द है, तो वो उस अर्थ में वाणी है। और काया तो है ही। और फिर मतलब कभी कभी एक योग पर ही आ जाता है व्यक्ति, चिंतन में, मनन में, कभी दो पर आता है, कभी एकदम उससे ऊपर उठ करके और चिंतन की गहराई में चले जाते हैं। तो ये सारे मतलब शब्द से परे है, ये ध्यान की प्रक्रिया शब्द से परे है, बिल्कुल परे है। ये हम धर्म ध्यान तक तो हम कल्पना, हमारी कल्पनाएं चलती है, धर्म ध्यान तक तो हमारी कल्पना कुछ मतलब हमको कुछ स्थूलता उसमें होने से हमको दिखाई देता है कि हाँ, ये विचार किया, वो विचार किया, ये लोगस्य के ऊपर ध्यान किया, नौकार मंत्र के ऊपर ध्यान किया, थोड़ा सा कभी किसी के ऊपर गुस्सा आया है, उसको हम झटक दिया कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, चलो, और हम फिर धर्म ध्यान में लग जाते हैं। तो वहां तक तो हमारी समझ में आता है। लेकिन ये जो शुक्ल ध्यान है, ये बहुत 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 हमसे ऊपर ऊपर है अभी विचार करना। अब क्योंकि ये जो अध्याय है, ये निर्जरा का अध्याय है। अब ये ध्यान में, ध्यान से निर्जरा होती ही है। अब इन्होंने ये कहा कि जो हमारी निर्जरा की प्रक्रिया है वो मतलब किस तरह से होती है। हमेशा हमारी निर्जरा तो चलता ही रहता है, बंध और निर्जरा होती ही रहती है, बंध भी होता रहता है, निर्जरा भी होती रहती है, हम भोग करके हमारी निर्जरा होती ही रहती है। कभी थोड़ी बहुत हम धर्म ध्यान में लगे हैं तो वहाँ निर्जरा होती है, सामायिक में, इंद्रिय नियमन में, इसमें निर्जरा होती है। लेकिन इन्होंने ये क्रम बताया है कि हमारी निर्जरा का जो क्रम है वो कैसे कैसे बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है। तो वो उन्होंने बताया है कि जैसे ही हमें सम्यक्त्व होता है, मतलब हम चौथे गुण स्थान में जब जाते हैं तो वहां से निर्जरा खूब अधिक 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 ऊपर उठती जाती है। चौथे से पांचवे में ज्यादा होती है, पांचवे से छठे में ज्यादा होती है, छठे से सातवें में ज्यादा होती है, आठवें में ज्यादा होती है। इस तरह से निर्जरा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, यानी असंख्यात गुना। जब हम चौथे गुण स्थान में आते हैं, असंख्यात गुना, वहां पर असंख्यात गुना किस अपेक्षा से है, तो कहा कि जब हम ग्रंथि भेद करते हैं उस समय में जो हमारे निर्जरा होती है उससे अधिक होती है जब हम चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। और चौथे से फिर जब हम पांचवे में चलते हैं तो वहां असंख्यात गुना अधिक, और पांचवे से छठे में जाते हैं तो असंख्यात गुना अधिक। इस तरह से असंख्यात गुना अधिक 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 होते हुए हम 13वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां संपूर्ण रूप से निर्जरा होती है। ये इस 47 सूत्र में बताया है। ये हमारे गुण स्थानों के जो नाम है, ये शायद तत्वार्थ सूत्र के बाद ये गुण स्थानों के नाम हुए हैं। इन्होंने अलग दृष्टि से बताया है कि सम्यक दृष्टि, फिर श्रावक, फिर विरत, फिर अनंत, वियोजक, फिर दर्शन, मोह, क्षपक, उपशमक और उपशांत, फिर क्षीण मोह,
शपक क्षीण मोह, इस तरह से इन्होंने जो नाम दिए हैं 10 बताई है, 10 सीढ़ियां बताई है इन्होंने। और इन 10 सीढ़ियों में अंतिम सीढ़ी तक हम जब पहुंचते हैं संपूर्ण रूप से निर्जरा हो जाती है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो निर्ग्रंथ होते हैं, यानी साधु शब्द न लेकर के इन्होंने निर्ग्रंथ कहा है। तो ये निर्ग्रंथ जो है वो कितने प्रकार के हैं तो बताए हैं कि पुलाक ये भी निर्ग्रंथ है, बकुश ये भी निर्ग्रंथ है, कुशिल ये भी निर्ग्रंथ है। फिर निर्ग्रंथ एक निर्ग्रंथ ही शब्द दे दिया है, और फिर उसके बाद है स्नातक। इस तरह से 5 प्रकार के इन्होंने निर्ग्रंथ बताए हैं। और उन निर्ग्रंथों में ये बताया है कि उनकी जो मतलब यानी निर्ग्रंथ का मतलब साधु तो है ही, यानी ये छठे गुणस्थान की बात तो है ही। अब ये छठे गुणस्थान में आने के बाद भी पुलाक जो निर्ग्रंथ है वो मतलब जिन भगवान की जो आज्ञा है, जो उनका उपदिष्ट उपदेश है, उससे वो विचलित नहीं होता है। ये इतनी उसकी विशेषता है पुलाक निर्ग्रंथ की कि उससे वो विचलित नहीं होता है। कभी थोड़ी बहुत जो स्खलना होती है वो बकुश निर्ग्रंथ में होती है कि वो जो उसके मतलब शरीर से उसका लगाव होता है, जो साधना के साधन है, मतलब पात्र है, रजोहरण है, वस्त्र है, उसमें उसकी एक प्रकार से एक लोभ वृत्ति होती है। उसको सुंदर बनाने का, उसको अच्छी तरह से विभूषित करने की उसकी कामना रहती है, यश की कामना रहती है, रिद्धि की कामना रहती है। तो ये बकुश निर्ग्रंथ है। फिर जो कुशिल निर्ग्रंथ है, इसके उन्होंने 2 भेद किए हैं। कुशिल निर्ग्रंथ उसमें एक है प्रतिसेवना कुशिल, जो उत्तर गुणों में, उसके उत्तर गुणों में स्खलना हो जाती है, विराधना हो जाती है कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी हो सकती है, तो वो प्रतिसेवना कुशिल कहलाता है। और जो प्रतिसेवना मतलब सेवन किया है उसने, जो नियम है उस नियम से बाहर किसी वस्तु का सेवन कर लिया है, मतलब उसने विराधना की है। એટલે એવું ને કે જે એને જે વ્રત લીધું હોય ને એનાથી દૂર વયા જાય એવું। हाँ, उससे थोड़ा सा दूर चला जाए, वो प्रतिसेवना कुशिल कहलाता है। और कषाय कुशिल जो है वो विराधना नहीं है किसी नियम की, नियमों में है, सारे नियम उसके पक्के हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याने प्रत्याख्याने तो खत्म हो गए हैं कषाय, लेकिन संज्वलन कषाय की भी जो डिग्री है वो कभी कभी उसकी बढ़ जाती है, तो वो है कषाय कुशिल। संज्वलन कषाय की डिग्री कभी कभी उसकी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो कषाय कुशिल कहलाता है। और निर्ग्रंथ वो है कि केवल ज्ञान के नजदीक नजदीक पहुंच गया है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन केवल ज्ञान के नजदीक नजदीक वो पहुंच गया, सर्वज्ञता के नजदीक पहुंच गया है, वो है निर्ग्रंथ। और स्नातक तो वो है कि जिसने सब कुछ पार कर दिया। ठीक, अब जो अंतिम है वो सूत्र इन्हीं 5 प्रकार के जो निर्ग्रंथ है, उन निर्ग्रंथों में यानी अल्प बहुत्व जिसे कह सकते हैं कि संयम किसका ज्यादा है, किसका क्या है, श्रुत कितना है, प्रतिसेवना मतलब वो दोषों का सेवन कितना करता है, फिर कौन से तीर्थ में या तीर्थ के बाहर में है,
लिंग कौन सा है उसका, स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है, फिर लेशा उसकी कौन सी है, फिर वो उपपात मतलब वो निर्ग्रंथ, अगर पुलाक अगर यहाँ से मृत्यु पाता है, यहाँ से निर्वाण उसका होता है, तो कौन से देवलोक में उसका उपपात होता है, और फिर स्थान कौन सा है, महाविदेय क्षेत्र है कि भरत क्षेत्र है कि कौन सा क्षेत्र है। और इस तरह से ये इन विकल्पों से उन पुलाक की संख्या, बकुश की संख्या, कुशिल की संख्या, निर्ग्रंथ की संख्या हम देख सकते हैं कि वो कितने हो सकते हैं। तो ये सारा इस तरह से हम ये 90वें अध्याय को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और बस फिर तो रीटा बेन वहां से निकल जाएगी, तो कौन करेगा फिर? ના સરનાજી મહારાજ હું મુંબઈ હોઈશ, હું કરી લઈશ. હા. अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फिर एक 10वां अध्याय करके और उसके बाद फिर हम पर्युषण तक इसकी छुट्टी ले लेंगे। फिर पर्युषण के बाद फिर अपन दूसरा कुछ शुरू करेंगे, ठीक है? ताई महाराज के दर्शन कर लो, ताई महाराज के दर्शन कर लो।